Hello everyone, welcome back to the Aspirant Institute YouTube channel. In this video, we are going to study our next topic of the Polity Mains 365 for the mains specific and especially for the 2024 mains specific. Start करने से पहले छोटी सी request. Please do like, share and subscribe that YouTube channel Aspirant Institute to show your support for my effort. Thank you so much. And if your optional is PSIR, please join the dedicated channel Telegram group. ऑल द स्टडी मटेरियल मॉडल आंसर सीरीज यहाँ पे अपन स्टार्ट कर चुके हैं. आप PSIR के लिए यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड फॉर द ओवरऑल UPSC स्टडी मटेरियल एंड डिस्कशन ग्रुप यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. थैंक यू सो मच. स्टार्ट करते हैं सिंपली. So what is about criminal justice systems? So what is a criminal justice system? So topic is criminal justice system and its status and position in India. So simple system which is used for the prevention of crime and providing the justice in the society is known as a criminal justice systems. सिंपल है. अगर मेंस में लिखने के लिए लैंग्वेज की बात करें so it is simply a structure, functions or decision and processes of a formal agencies deal with the crime prevention, investigation, prosecution, punishment and the correction, protect the vulnerable sections in the society. सिंपल. दैट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. सो हमारा जो भी सिस्टम है जस्टिस प्रोवाइड कराने का, क्राइम को प्रिवेंट करने का, इसे हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोलते हैं. पुलिस सेटअप हो गया हमारा, है ना, ट्रिब्यूनल्स हो गया, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो गई और सारे के सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर, दीज आर द पार्ट ऑफ द क्राइम जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. नाउ what is the status of India's criminal justice system and why we need reforms? Some reforms are needed. So why we need these reforms? What are the loopholes and the positions of India's criminal justice system? So first of all, our criminal justice system are the replications of colonial legacy. So we need to erase the colonial legacy. So in this way, we need modern socio-economic cultural context based क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. सिंपल. तो आज के माहौल के बेसिस पर फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, AI थ्रेट उसमें इंक्लूड होना चाहिए, है ना. आज का जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, उस पर रिफ्लेक्शन होना चाहिए. ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हमें जरूरत है. नेक्स्ट इज देयर इज अ लो कन्विक्शन रेट. व्हाट इज अ लो कन्विक्शन रेट और वाज इट कन्विक्शन रेट? कन्विक्शन रेट मतलब सिंपल percentage of the accusation converted to the conviction. तो आरोपी सिद्ध होता है तब उसको कन्विक्शन बोलते हैं, है ना. तो मर्डर के केस में जस्ट 43% है मर्डर के केस में. रेप के केस में 27.4% है अकॉर्डिंग टू NCRB रिपोर्ट 2020, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. तो ऐसा हमारा सिस्टम है कि हम केस रजिस्टर कर लेंगे बट आरोप सिद्ध नहीं कर पाएंगे. So what is the benefit of this system? So we need to reform the criminal justice system. Next is addressing the court pendency. Court pendency बहुत ज़्यादा है इंडिया में. For example, 4.7 करोड़, more than 4.7 crore cases are pending in the judiciary. Supreme Court, High Court and subordinate courts में pending है. इतने सारे cases हैं. अकेले सुप्रीम कोर्ट में more than 80,000 cases हैं. Next, low judge to population ratio is there. What is population ratio and the just to population ratio? That is 21 judges and 1 million population. So that is 21 जज हैं. बताओ, 10 लाख लोगों पर सिर्फ और सिर्फ 21 जज हमारे पास में है सुनवाई करने के लिए या फिर जजमेंट देने के लिए. नेक्स्ट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. व्हाट इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी? So there are 21 judges for the 110 lakh people in India. Next, modern technology. We need a criminal justice system which include the modern technology. For example, the evidence handling और उसके storage में भी हमें modern technology को use करना है. वो for example data analysis, AI, ChatGPT, all these things. Next, there is a low extradition success. Extradition success क्या होता है? जब हमारा कोई भी criminal देश छोड़ के बाहर चला जाए और उसको वापस देश में लाना, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्राडिशन. फॉर एग्जांपल नीरव मोदी भाग गए, आज तक आ पाए नहीं आ पाए, सरकार ला पाई नहीं ला पाई. नेक्स्ट विजय माल्या और कई सारे लोग ऐसे हैं, नित्यानंदा फ्रॉम द साउथ. सो दीज आर द लो
extradition success in this criminal justice system. So we need to reform this. And the human resource shortages is there. Human resource shortages in the system. That is, we have only 192 police persons over 1 lakh populations. So 1 लाख की पॉपुलेशन पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 192 पुलिस मैन हैं, जहाँ पर यूएन ने रिकमेंड किया कि कम से कम 222 होने चाहिए. सो 30 का गैप है. There's a huge gap. So these are the loopholes and the status of India's criminal justice systems. Next, there are some steps taken by the government to reform these criminal justice systems. First is there are some new laws, new criminal laws. For example, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम. फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल है इन लॉ में कि अगर आप रोड एक्सीडेंट में किसी की हेल्प करते हो तो आपको ज़रूरी नहीं है गवाही देना पड़े, एज अ विटनेस, एज अ एविडेंस आपको कोर्ट में जाना पड़े, और आप बस हेल्प करिए. और एक गुड सैमरिटन स्कीम है गवर्नमेंट की, जहाँ पर ऐसे लोगों को, ऐसे सिटीजन्स को जो हेल्प करते हैं दूसरों की रोड एक्सीडेंट में भी, कई जगह उनको अवार्ड दिया जाएगा, उनको गिफ्ट दी जाएंगी, कुछ ऐसा रिवॉर्ड दी जाएंगे. इस तरीके से कुछ अमेंडमेंट आए. नेक्स्ट इज देयर इज अ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ 2018. तो जितने भी विटनेस हैं, एविडेंसेस हैं, आई विटनेसेस फॉर एग्जांपल, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी स्कीम है 2018 की गवर्नमेंट के पास. नेक्स्ट इज द सेटअप ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स का सेटअप होना एक अच्छी चीज़ है फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. देन देयर इज अ क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022. 2022 के रिगार्डिंग क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट आया है 2022 में. नेक्स्ट, some best practices adopted by some state government and the central government. For example, राजस्थान में ओपन प्रिजन सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है. अभी ओपन प्रिजन सिस्टम क्या होता है, एक बड़े से ग्राउंड में बाउंड्री बना दी जाएगी और उसके अंदर ही कैदी रहेंगे, आरोपी रहेंगे, और उनको थोड़ा सा फ्री मूवमेंट करने के लिए दिया जाए, ना कि सिर्फ 4 दीवारों में बैठ के उनके साथ एनिमल टेंडेंसी नहीं दिखाई जाए, एनिमलिस्टिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए. सो देयर इज अ नीड इन criminal justice system in this way. Now, some other recommendations or way forward recommended by Supreme Court as well as Malimat Committee. So, Supreme Court recommended these recommendations in Prakash Singh judgment in 2006 में. For example, first of all, there is a need to establishment of State Security Commission. State Security Commission बनाने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, to reduce the political interferences. Next is मेरिट बेस्ड डीजीपी अपॉइंटमेंट होना चाहिए. जितने भी डीजीपी अपॉइंट होते हैं उनका मेरिट बेस्ड होना चाहिए, ना कि फेवरेटिज्म और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से. एंड मिनिमम 2 ईयर टेन्योर उनका होना चाहिए. नेक्स्ट इज देयर इज अ नीड ऑफ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड. पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाने की जरूरत है फॉर मैनेजिंग द ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशंस और सैलरी के लिए, ताकि करप्शन ना हो पाए और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और फेवरेटिज्म ना हो पाए. नेक्स्ट, देयर इज अ नीड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन. नेशनल सिक्योरिटी कमीशन को एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, ताकि जितने भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के चीफ्स को, ताकि एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में सिलेक्ट किया जा सके, उनका अपॉइंटमेंट हो सके. सो दीज आर द रिकमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट in Prakash Singh judgment case. Next is there is a need of increasing independence of prosecutors. There is a need of a strong establishment of strong operational, financially independent डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशंस क्या होते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, कि सरकार की तरफ से जो केसेस होंगे सरकार की तरफ से वकील कोर्ट में आएंगे, दैट इज अ प्रोसिक्यूशन. डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, तो जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उनको एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में चलते रहे, करप्शन ना हो, तो एक हमें डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है इन एवरी स्टेट. नेक्स्ट, देयर आर सम रिकमेंडेड बाय मालीमत कमेटी. मालीमत कमेटी ने बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड टू इंक्लूड द राइट टू साइलेंस इन आर्टिकल 20. जो आर्टिकल 20 है, जहां पर सेल्फ इंक्रिमिनेशन को प्रोटेक्शन मिलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन. कोई भी पुलिस मैन आपसे फोर्सफुली आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, इस तरीके से आपके अधिकार है. सो देयर शुड बी अ राइट टू साइलेंस. नेक्स्ट, राइट ऑफ एक्यूज्ड. राइट ऑफ एक्यूज्ड मतलब जो भी एक्यूज्ड है, जो भी आरोपी है, उसके कुछ अधिकार है. फॉर एग्जाम्पल, जो भी कोड शेड्यूल है और जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं, वो रीजनल लैंग्वेज में उसको अवेयर करने के लिए प्रोवाइड कराने चाहिए. नेक्स्ट, देयर इज अ नीड ऑफ ऑथराइज द डाइंग डिक्लेरेशंस.
Authorized direct declarations, confessions and audio video recorded witness statements. एंड अथोराइज करने की ज़रूरत है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड विटनेस स्टेटमेंट्स है तो उनकी वैल्यू नहीं होती है, उनकी वैल्यू जरूरी है, कन्फेशंस होते हैं, कन्फेशन नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक प्रोसिक्यूशंस। पब्लिक प्रोसिक्यूशंस जो भी हैं, जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं या फिर प्रोसिक्यूटर्स हैं, इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंट और फेयर मैनर में इनको सिलेक्ट किया जा सके, अपॉइंट किया जा सके, रिक्रूट किया जा सके। सिंपल। तो हमने देखा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, उसमें लूप होल्स क्या हैं, उसकी रिकमेंडेशंस देखी, और मेंस में कहीं ना कहीं ये सारा का सारा डाटा आप यूज कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। Join the Telegram channel for PSIR optional and UPSC material and as well as guidance. You can join this Telegram channel. Thank you so much. Take care. Love you all.